अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार हमारा एक सेशन हुआ था ग्रेड एप्लीकेशन पे, तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी था। तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे और हम लोगों ने उनके जो हैं वो आंसर्स किए थे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड, तो आप वो भी जो है कमेंट्स में कर सकते हैं। उसके साथ साथ यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे जो है वो इंस्टा पे भी फॉलो करें। इंस्टा का जो लिंक होगा वो भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जाएं, उसको भी फॉलो करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखें पूरी वीडियो और उसके बाद जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। Okay, so one of the most awaited sessions is over here. Since global UCRAD applications are open around this time, and the deadline is 28 April 2021. So me and a couple of other global UCRAD alumni have decided to organize a session to guide all those who are willing to apply for global UCRAD applications this year. So we have organized the session to guide you all and to give you an overview about the global UCRAD program and give an insight about our experiences. And we will be discussing how to fill the application form, and we will also be taking any questions or comments from you guys. So let's begin with it. So you can see on the cover we have got a picture, and this is from our fall 2019 group. Yes, so let's begin with it. Let's move on to the next slide. Okay, so Walaikum Assalam. So I am your host today, and we have got Mohammad Usman as our guest. Usman आज हमारे गेस्ट हैं और ये भी यूनिस हैं 2019 के। तो ये कॉलेज ऑफ कोस्टल जॉर्जिया, इनका होम इंस्टीट्यूट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, एंड ही इज मेजरिंग इन बिजनेस। Another guest that we have today is Atif Suhail, and he is also a global UGrad alumnus from the same group, fall 2019, and he placed the Minnesota State University में, and he was in the state of Minnesota. And इनका जो home institute है वो है University of Lahore, and he is majoring in physical therapy. This is me, Hira Nisar, your host for today's session, and I am also a global UGrad alumnus from the same group for 2019. And me and Usman had the same institute. We were placed at the same institute, which is College of Coastal Georgia. It was in the state of Georgia, and I am doing MBBS over here in Pakistan from Jinnah Medical University, Karachi. So that's my home institute over here. So let's begin with the session. We will discuss a bit about the Global UGrad program, and that's what our session is entirely based on for today. So talking about the program administrators, हमारे पास कौन program administrators है, sponsors कौन होते हैं Global UGrad program के। पाकिस्तान में USEFP डील कर रहा होता है, which is United States of Educational Foundation in Pakistan। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो भी आपकी यहाँ पे डीलिंग होती है वो USEFP के साथ होती है। और जब आप एक दफ़ा सिलेक्ट हो जाते हैं, वंस यू गेट सिलेक्टेड, आप जब US जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो टोटल डीलिंग होती है और आपकी जो प्लेसमेंट होती है इंस्टीट्यूट पे, उस सब के साथ डील करता है IRIX, which is International Research Exchanges. Okay, so Global UGrad Academic Study, what this all is about basically, आप एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. This is once in a lifetime opportunity and definitely a game changer if you get selected. आप एक सेमेस्टर पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वो जहाँ आपको प्लेस करते हैं वहाँ पे आप एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, एंड ऑब्वियसली जो आपका मेजर होता है पाकिस्तान में बैक इन योर होम यूनिवर्सिटी, तो उसके हिसाब से आपको प्लेस किया जाता है और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. सो यू स्टडी वन सेमेस्टर ओवर देयर, और फुल टाइम होता है. दिस इज नॉन डिग्री. You don't get a degree of that. You definitely get a transcript,
but it's a non-degree program. So you just basically study a semester over there. और इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, आपको चांस मिलता है अमेरिकन कम्युनिटी एक्सप्लोर करने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा आपकी प्लेसमेंट होती है वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में होती है, इट कुड बी अ कॉलेज, अ कम्युनिटी कॉलेज और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। But it's a non-degree program, so you just basically study a semester there, or इसके अलावा cultural exchange program है। Okay. प्रोग्राम इंसेंटिव्स में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीज़ा सपोर्ट मिलती है, एंड द काइंड ऑफ वीज़ा दैट यू गेट इज J1। तो और उसकी वैलिडिटी उतनी होती है जितना आपका स्टे होता है यूएस में, कि आपका एक सेमेस्टर कंप्लीशन वहाँ पे हो। सो J1 वीज़ा सपोर्ट, वो जितनी भी सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लाइक you fill the visa application later when you get selected, लेकिन आपको जो सारा स्पॉन्सर कर रहा होता है वो यहाँ पे यूएस कर रहा होता है, और यूएस में आईरेक्स स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो दे टेक केयर ऑफ ऑल द इंटरनल अफेयर्स। तो आपको J1 वीजा सपोर्ट मिलती है। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जिस भी चीज़ पे चाहें वो खर्च कर सकते हैं। राउंड ट्रिप आपका ट्रैवल होता है from your city to host institution in the United States, मतलब पाकिस्तान से यूएस का ट्रैवल और यूएस से वापस पाकिस्तान का ट्रैवल, ये भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है जो आप वहाँ पे लाइक यू कैन स्पेंड इट एज यू प्लीज, तो आप उससे उस स्टाइपेंड से आप यूनाइटेड स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स आप विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंट्स एंड सिकनेस कवरेज आपको मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। वो जो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवरेज देती है, वो आपको कवरेज देती है कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंटली आपको कोई चोट लग जाती है या कुछ भी इस किस्म की आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है एक्सीडेंटली, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कवर करती है। अदर देन दैट ट्यूशन एंड मैंडेटरी यूनिवर्सिटी फी, जो भी ट्यूशन फी होती है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप बेस्ड होते हैं, वो भी आपका फंडेड होता है, में इंक्लूडेड होता है। उसके अलावा आपकी जो हाउसिंग है एंड आपकी जो मील्स हैं, मील प्लान्स और आपकी हाउसिंग, ऑब्वियसली आप ऑन कैंपस रह रहे होते हैं तो वो भी उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है, प्रोवाइडेड होता है। उसके अलावा अदर देन दैट यू गेट अ मंथली स्टाइपेंड व्हिच इज अराउंड $400 पर मंथ, तो it's a quite good amount, and if you are fond of traveling, अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, आप एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड मिलता है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा तो आपका ऐसा कुछ खर्चा हो ही रहा होता है। हाउसिंग रेजिडेंस उनकी तरफ से है, मील प्लान उनकी तरफ से है, ट्यूशन फी उनकी तरफ से है, थोड़ा बहुत जो आप वहाँ पे सेटल इन होना होता है, चीज़ें स्टार्ट करनी होती हैं, कुछ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है, तो you can take care of that with that stipend, या आपके कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई बुक्स वगैरह हैं या कोई कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो दैट आई थिंक स्टाइपेंड आपकी अच्छा खासा होता है, काफ़ी होता है, आप यहाँ से बहुत सी स्टेट घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हाँ, बुक्स के लिए हमें लिमिटेड अलाउंस मिलता है, कि अगर आपको कोर्स के लिए वहाँ पे अपनी अलग से बुक्स लेंगे उसके लिए अलग से अलाउंस मिलता है। And other than that, have a wide variety of alumni networking and training opportunities. Training sessions होती हैं, leadership के specifically and alumni एक वो पूरा create yeah. So there is a variety of alumni networking, एक पूरा alumni network create होता है जहाँ आप different alumni या आपके जो प्रोग्राम के लोग आपके बच के आप उनके साथ अपडेट रहते हैं, एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, उनके साथ डिफरेंट इंसेंटिव्स होते हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। बेसिकली ग्लोबल यूग्रेड का इनिशिएटिव, इसका पर्पस ये है कि टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी लीडरशिप इन द इमर्जिंग जनरेशन, हमारी नई जनरेशन है उसको एम्पावर किया जाए लीडरशिप
स्किल्स सिखाई जाए, मजीद बेहतरी लाई जा सके, और वहाँ पे जो आप कम्युनिटी में रह के जो चीज़ सीखते हैं, जो आप लीडरशिप एक्शन प्लान्स देखते हैं, वो चीज़ें जो आप, वो स्ट्रैटेजीज जो आप वहाँ सीखें, वो आके आप अपने होम कंट्री में, होम कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट कर सकें, और अपनी होम कम्युनिटी को आप हेल्प आउट कर सकें ग्रो करने में एंड इम्प्रूव करने में. Okay, so Usman and Atif, if you guys want to say or add anything to that, or tell us something about हीरा, आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो हमें एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहिए आगे. बिल्कुल, हीरा ने जो है वो काफ़ी कुछ बता दिया इसके मतलब. तो मेन अभी एप्लीकेशन सेक्शन भी है, और तो उसके मतलब जो है वो लाइव जो है आतिफ वो फिल आउट करके देंगे एप्लीकेशन किस तरह फिल आउट कर सकते हैं आप लोगों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी काफ़ी लोगों की. तो जब लाइव जो है वो आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फिल आउट होगी तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज होंगी आप लोगों की वो ख़त्म हो जाएंगी. तो आतिफ, अगर आप जो हैं वो USCFE की वेबसाइट से एप्लीकेशन शो कर दें तो. जी, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ. उसके अलावा क्वेश्चन पूछना है तो वो जो है let's begin with it. आई थिंक हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है स्क्रीन पे. हो रहा है आतिफ? ठीक है. अच्छा, लेट्स गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म से. तो जैसे ही आप लोग USCFE की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही आपके सामने एक फॉर्म के लिए स्टेप्स हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So here is our website, USCFE website. तो बेसिकली जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये कैसे स्क्रीन आ जाती है, ठीक है. उसमें सबसे पहले तो आपके पास या तो होता है कि आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें. तो क्योंकि जो न्यू लोग हैं वो सबसे पहले अपना रजिस्टर करेंगे. तो जैसे कि ये मैंने अपना ईमेल ID डाला है, वो आपसे कंफर्म करेगा. देन आपका ID कार्ड नंबर, ठीक है, एंड देन हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है. क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है. जनरल इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें आती हैं कि लाइक अगर आपने कोई भी जो है ना जगह जो स्पेस है वो खाली नहीं छोड़नी, ठीक है. अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपने सिंपली इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल या उसको शॉर्ट फॉर्म में NA लिख देना है, ठीक है. बाकी सारी जो स्पेसेस हैं वो इंग्लिश में फिल अप होनी है. हर चीज़ की गाइडेंस साथ साथ उन्होंने दी हुई है, हर सेक्शन की गाइडेंस साथ साथ दी हुई है, ठीक है. कोई भी सेक्शन जो है ना या स्पेस है वो आपने खाली नहीं छोड़नी, ठीक है. जो आपसे रिलेटेड नहीं है सिंपली आप उसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल एंड लिख देंगे, ठीक है. कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, ठीक है, जो मेजरली जिनमें स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है ना. वो कुछ ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये कि हमारे पास फर्दर और भी इसकी सब कैटेगरीज अवेलेबल है, ठीक है. तो वो हम आगे जाके फॉर्म के अंदर देखते जाएंगे, ठीक है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हम जाते हैं जब, तो उसमें हमारा गुड, एक्सीलेंट और फेयर 3 तरह की कैटेगरी आती है. क्योंकि हमारी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज, तो हम लोग गुड पे क्लिक करेंगे. क्योंकि हम लोग एक्सीलेंट नहीं होते क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. तो ऐसे रिकमेंडेड कि आप गुड पे क्लिक किए,
ठीक है। एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ इसमें होंगी, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। ये जब हम फिलअप करेंगे तो वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा कि किस तरह से करना है। पर्सनल स्टेटमेंट जो इसका लास्ट और मेजर सेक्शन है वो हमारा पर्सनल स्टेटमेंट का है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट में हम जो चीज़ें कंक्लूड करेंगे वो एट द एंड ऑफ दिस फॉर्म है, वो इसका लास्ट पोर्शन है। तो क्यों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वो एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो आपका सबसे पहला जो सेक्शन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपका नेम जो एप्लीकेंट का है, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड पे नेम या जो आपका पासपोर्ट नेम है आप लोगों ने वो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जो ये ऊपर स्टार्स हैं ये मेंशन कर रहे हैं कि इट्स मैंडेटरी, ठीक है। टाइटल में मिसेस मिस्टर और मिस तीन है, आप बॉय मिस्टर मिसेस जो गर्ल्स हैं उनके लिए, ठीक है। और आपका फर्स्ट नेम जो मैंडेटरी है, मिडिल नेम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लास्ट नेम भी मैंडेटरी है। अब कुछ लोगों के तीन तीन नेम आते हैं तो वो अपना मिडिल नेम भी पुट कर सकते हैं, और जो बाकी हैं वो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड लिख के उसके बाद आता है कंट्री और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें ये कि डू यू हैव मल्टीपल, अगर तो आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप है, लाइक कुछ लोग मोस्टली जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं कुछ सऊदी अरेबिया से काम करते हैं या उनकी स्टूडेंट नेशनलिटी है तो वो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, और जिनके पास सिंगल लाइक पाकिस्तानी आईडी कार्ड है तो जस्ट नो पे क्लिक कर देंगे। पाकिस्तानी नेशनल यस और नो, और यस पाकिस्तान हमारे पास आईडी कार्ड है तो आप यस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंटली किस कंट्री में, तो लाइक हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान है इसमें और नेक्स्ट इज अ कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंसी, चूज कंट्री, यहाँ आप कहाँ रह रहे हैं तो पाकिस्तान है तो सिंपली हम लोग पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ होता है जहाँ आप पैदा हुए हैं, लाइक आपका आबाई जो वो सिटी आपको कहाँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम कंट्री देखेंगे, लाइक सिटी लाइक मेरा है साहिवाल है तो मैं साहिवाल देख लूँगा, कुछ लोगों का लाहौर है तो वो लाहौर देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट है, जैसे ही आप अपना दबाएंगे अपने सिटी का फर्स्ट लेटर तो आपको यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर तो कोई स्पेसिफिक फर्दर आगे है उसका गांव वगैरह है तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और कंट्री कंट्री डेफिनेटली पाकिस्तान है, तो अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो हम पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसमें फर्स्ट आपने डे देन मंथ एंड देन ईयर। जेंडर में आप अपना जो भी मेल फीमेल है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, मोस्टली लोग सिंगल ही होंगे मेरी तरह, ठीक है। और in order to respond to require US government inquiries, ठीक है। तो चूज डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप लाजमी मेंशन करें, लाइक हैंडीकैप है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है। लाइक अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो इट्स नॉट विजुअल इम्पेयरमेंट, इसका मतलब आप लीगली ब्लाइंड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ मेंशन है। कोई ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, लाइक कोई ऐसी इम्पेयरमेंट है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने या अपनी जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए में दुश्वारी आती है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई लर्निंग डिसऑर्डर है या कोई अदर्स में आ जाता है तो मोस्टली लेवल है उसमें अगर आपको कोई इस तरह की नहीं है तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ये आपने अपना जो करंटली जहाँ पे आप रह रहे हैं, लाइक कुछ लोग हॉस्टल्स में रह रहे हैं, मुझे मोस्टली उन लोगों के लिए होता है ये वो वाला एड्रेस हम पुट करते हैं जहाँ हम अपने डॉग वगैरह रिसीव कर सकें जहाँ हम करंटली रह रहे हैं। उसमें होता है लाइक एड्रेस टाइप क्या है, आप देखें यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है, हॉस्टल वगैरह में ये टेम्परेरी आपने कोई पोर्शन या कोई घर रेंट पे लिया हो, देन आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है, सिटी है, पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं भी पता सिंपली गूगल पे जाएं, अपने सिटी का नेम लिखें तो आपको अपने सिटी का कोड पता लग जाएगा, लाइक जैसे लाहौर का 56,000, ठीक है। रीजन और प्रोविंस, लाइक
मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब पे क्लिक कर दूँगा। कोई सिंध से है, बत्तीस साल से, पाटा से है, कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान से, तो वो सिंपली अपना प्रोविंस एंड लास्ट पे हम अगेन हमारा कंट्री, फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर मोस्टली तो हम पीडीसर यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर कोई यूज़ करता तो वो लिखते, अगर नहीं करता तो यहाँ सिंपली हम 0123 पुट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर की जगह अपना कोई ऐसा जो रनिंग पोजीशन में हो और मतलब आप लोग उसको कॉल आती है तो आप रिसीव करता तो वो वाला नंबर, ठीक है। देन अगेन आपका ईमेल है तो ईमेल यहाँ पे मेंशन की। परमानेंट एड्रेस में सेम वही हम लोगों ने एड्रेस यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है, सिटी, ठीक है। उसके साथ ये पोस्टल कोड उसी सिटी का अगेन आप गूगल कर सकते हैं, प्रोविंस और कंट्री, देन फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। अगेन आप वो सेम चीज़ें पुट कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अगर आपके नंबर पे कॉल नहीं हो रही तो हम यहाँ पे वो वाला नंबर जो आपका नेक्स्ट, लाइक आपके कोई भाई का हो सकता है, फादर का हो सकता है, जो आपकी कॉल, अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे तो उसकी जगह आपकी कॉल को बंदा जो दूसरा रिसीव करेंगे उसका होगा। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट नेम में रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, लाइक आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, जो भी हैं यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। एड्रेस अगेन सिटी, पोस्टल कोड, प्रोविंस, कंट्री, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल, ठीक है। अब पोर्टल के अंदर ये एक आसानी है, ठीक है, जितनी आप इंफॉर्मेशन है आप इस पेज पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि ये मैंने सेव कर दी है, नेक्स्ट टाइम जब मैं एप्लीकेशन खोलूँगा तो मुझे ये चीज़ें अगेन पुट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो सेव कर सकते हैं या सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर एक सिर्फ एक फॉर्म फिल किया है, मैंने कहा बस नेक्स्ट, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नेक्स्ट करूँगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एग्जिट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास एकेडमिक इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है, इसमें है एजुकेशनल बैकग्राउंड। यहाँ हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इस स्क्रीन में हम लोगों ने ऐड क्या करना है, इसमें मोस्ट जीपीएस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 3.7 आउट ऑफ 4, लाइक हमने जो जीपीए लिखना था वो आउट ऑफ 4 आता है। इन केस ऑफ योर टोटल जीपीएस 5, चूज 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेंशन है कि हमने जीपीए में से, ठीक है। यू हैव आल्सो स्पेसिफाइड परसेंटेज भी आप शो कर सकते हैं, लाइक 100 में से आपकी कितनी परसेंटेज आई है, लाइक जिनका एनुअल सिस्टम आप परसेंटेज करते हैं, जो सेमेस्टर वाले हैं वो जीपीए की बेस पे चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमने डिग्री कि हमारी डिग्री कौन सी है, बैचलर 5 ईयर भी होती हैं और 4 ईयर भी, फॉर एग्जांपल हम जनरल करते हैं 4 ईयर, ठीक है। डिग्री स्टार्ट मंथ, लाइक मैं कह रहा था फेब से स्टार्ट हुई, ठीक है। और यहाँ हम लोग ईयर मेंशन कर देंगे कि किस ईयर में हुई, तो वो मेरी हुई 2016 में हुई, ठीक है। और फील्ड ऑफ स्टडी क्या था मेरा, मेरा हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हेल्थ में हम ये देखें, अब हेल्थ में आ जाते हैं तो हमारे पास एक काफ़ी वाइड स्कोप मेडिकल साइंसेज आ जाता है, ऑक्यूपेशन, फार्मा, फार्मेसी, फिजिकल थेरेपी। तो मेरा मेजर जो है फिजिकल थेरेपी, तो हेल्थ में मैं फिजिकल थेरेपी सेलेक्ट कर। इसी तरह आपका जो अपना फील्ड ऑफ स्टडी आप लोग अपनी मर्जी से चूज करें, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, सिटी, ठीक है। यहाँ हम लाहौर है तो मैं लाहौर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अदर इंस्टीट्यूट, अगर आप लोग मतलब ये यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री में आप लोग सीजीपीए और मतलब कि आपका जो करंटली सीजीपीए क्या चल रहा है या परसेंटेज, अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आप अपने परसेंटेज, लाइक मैं कह रहा था कि मेरा 4/4 चल रहा है, ठीक है। तो डिग्री का जीपीए, ठीक है। और सीजीपीए आपका कितना है, वो मतलब कितने में से आता है, या तो परसेंटेज आपका 100 होगा, और अगर तो आपका 4, अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आप 100 में से परसेंटेज बताएंगे कितने परसेंट मार्क्स है मेरे। और अगर आपका जीपीए है तो आप 4 या 5, मोस्टली यूनिवर्सिटी का 4 ही होता है, ठीक है।
हमारे पास इंस्टीट्यूशन सिटी कौन सा है, मेरे पास लाहौर ही है। कंट्री पाकिस्तान है। अब इंस्टीट्यूशन मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये हम अपने नेम, इस नेम से हम लोग ना सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, हर बंदा अपनी यूनिवर्सिटी, ये देखेंगे अच्छा, यहाँ स्टार्ट कब हुई और करंटली इनरोल, यस और नो। डेफिनेटली अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आप यस में क्लिक करें, क्योंकि ये कंटिन्यू स्टडी वालों के लिए है, जिन्होंने पूरी होगी उनके लिए तो नहीं है। ठीक है, अब मंथ हम लोगों ने कि किस मंथ पे एंड हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि अप्रैल पे एंड हो रहा है। ठीक है, साथ ईयर मेंशन कर देंगे 2021 में मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कि ये हमारा पास एक एजुकेशनल लेवल है, हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है, हमने वो फिलअप करना है। ठीक है, उस पर हम सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करके अब मेरे पास एक आ गया। ठीक है, और उसके साथ अब हम नेक्स्ट जो ऐड कर सकते हैं वो लेवल है, वो एजुकेशन का डिग्री का नेम, वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट या और ए लेवल है। तो हम देखते हैं कि अगर तो कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट किया तो कोई ए लेवल तो अपनी मर्जी से अगेन वही चीज़ है, इंटरमीडिएट पे सिलेक्ट करेंगे तो देन सेम हमने वही फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है, जैसे ही देखिए मैंने इंटर क्लिक किया है तो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली यहाँ 100 आ गए, क्योंकि इंटर के मार्क्स जो है परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें हम लोगों ने इसी तरह फिलअप कर देनी है, देन सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी आपने फिलअप नहीं की है, कोई बात नहीं है, बाद में फिल करना चाहता हूँ, अभी नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट हम टोफल टेस्टिंग ऑप्शन। अच्छा, यहाँ में है कि इफ़ यू हैव नॉट टेकन द test of English as a foreign language TOEFL, so you are selected as a semi-finalist if you will be required to the TOEFL exam. The cost of examination, इसमें ये क्या आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यूएसए जो है स्पेशल सेशन अरेंज करवाता है उसके लिए टेस्ट का, टॉफल का, तो वो उसकी फ़ी भी आपको नहीं पे करनी पड़ती, वो भी यूएसए पे करता है। तो आईबीटी हम लोग सिलेक्ट करते हैं टोटल स्कोर, अगर तो आपने पहले दिया हुआ है टॉफल तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले टेस्ट दिया हुआ है देन आप क्या करेंगे, टॉफल स्कोर बताएंगे, डेट बताएंगे और लोकेशन बताएंगे कि आपने किस जगह दिया और डेट टॉफल की टाइप कौन सी थी। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको लीव कर सकते हैं। अदर स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोई आपने अगर इसके अलावा जैसे सेट एग्जाम है, जीआरई है, कोई ऐसा एग्जाम दिया हुआ है तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप टेस्ट का नेम, स्कोर, डेट एंड लोकेशन यहाँ मेंशन करते जाएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है। ठीक है, लाइक हमारी अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप कितने सालों से, लाइक हमारा जो कुछ लोग तो नर्सरी और इवन के उससे पहले भी जो स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग होती है उसमें भी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ हम एवरेज को 10 ईयर लगा देते हैं। ठीक है, लोकेशन स्टडीड, तो ये हमारा पाकिस्तानी है, इसके अलावा हम लोग अभी कहीं नहीं गए हैं तो आप यहाँ से पाकिस्तानी मेंशन कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप अपने नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश रेट करना है आपने। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले उर्दू, इंग्लिश एंड देन अपनी जो मदर टंग है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे रीडिंग एबिलिटी है तो लाइक रीडिंग तो हमारी ऑलमोस्ट एक्सेलेंट ही होगी, तो आप इसको एक्सेलेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मोड ऑफ स्टडीज़ जो है यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली इंग्लिश है, तो हम एटलीस्ट एक रीडिंग अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, आप अपनी क्रेडिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप कर सकते हैं। राइटिंग में आ जाता है लाइक गुड, और स्पीकिंग में भी ऑलमोस्ट गुड ही कह लें, नॉट, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और इस तरह उर्दू में, रीडिंग में भी आप उर्दू लिखते हैं। यहाँ हमारे पास ठीक है, एक्सीलेंट रीडिंग उर्दू से एक्सीलेंट है, गुड, राइटिंग भी एक्सीलेंट है, और देन स्पीकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक है। तो इसी तरह हम पंजाबी पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सिटी कोर्सेज। हम यूनिवर्सिटी कोर्सेज में ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं जो हम करंटली पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ अपने ऑलमोस्ट जो है ना वो 10 कोर्सेज हैं, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे मेंशन करते हैं एकेडमिक ईयर, लाइक कौन सा ईयर है, लाइक 2016 से 17 का, ठीक है, और आपका ग्रेड क्या आया, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम क्या था। तो यहाँ आप अपने कोर्सेज मेंशन कर देते हैं अपने स्पेसिफिक, और उसको लाइक आपका 3 पॉइंट परसेंट से ये ग्रेड, लाइक ए ग्रेड आएगा आपका, तो मैं इसको सेव कर दूँ। अच्छा, अब इसी तरह आपने कोई 10 ग्रेड आपने ऐड कर देना इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस। आप यूएस में कहाँ इसमें नहीं, फिर हम लोग वही जैसे कि हेल्थ में मैं गया था क्योंकि मेरा मेजर फिजिकल थेरेपी है, तो इसी तरह मैं अपना यहाँ से कोई भी जो आपका स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आप हैं तो आप उसको यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ आपने अपने इंस्टीट्यूशन मेंशन करना है, ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं, ठीक है, यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद है कि इंस्टीट्यूशन नेम, डिपार्टमेंट के नेम हो तो वो भी मेंशन करना। फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स हैं तो वो मेंशन करते हैं यहाँ पे, लाइक आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है, फैकल्टी ऑफ अलाइड साइंसेज में है, तो यहाँ करंट डिग्री जो है वो आपने यहाँ पे 5 ईयर 4 ईयर जो भी है आपका वहाँ पे यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। इसी तरह आपके परसेंटेज क्या है, जीपीए कितना चल रहा है, 4 में से है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है। एड्रेस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस आप गूगल कर सकते हैं, सिटी, ठीक है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारे आप वहाँ से गूगल से ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सेम वाली, क्योंकि लास्ट वही है जो आपने अभी पढ़ रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें सेम वही मेंशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर आपका वो नहीं आ रहा उसके अंदर, लिस्ट में यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो आपको सिंपल वो लिस्ट के अंदर पाकिस्तानी कॉलेज आ रहा होगा तो आप सिंपली वो वाला चूज कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर लिस्ट के अंदर मेरे पास और अपना नाम जो है पाकिस्तानी, यहाँ पाकिस्तानी कॉलेज आ रहा था, यहाँ पर जस्ट मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें वही, कंट्री, पोस्टल कोड, और आपका कोर्स का कौन सा ईयर है, लाइक आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है तो लाइक फोर्थ ईयर है, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन आपकी कब हो रही है, तो आपने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड को ज़रूरी नहीं कि आप पता करें एग्जैक्टली, आप कोई भी एक टेंटेटिव डेट डाल सकते हैं। करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आपका यहाँ पे अगेन आपने वो फील्ड अपनी चूज करनी कि आप करंटली आप क्या कर रहे हैं, देन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ सेव करते जाएं, ठीक है। तो अब हमारे प्रीवियस वीज़ा, अगर आपका कहीं को वीज़ा लगा हुआ है तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ प्रोग्राम ईयर, ठीक है, तो अगर तो नो तो है सिंपली हम यहाँ से नो कर दें कि मेरा लगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट का नहीं होता, तो अगर है गैस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, ये सारी चीज़ें हम पुट कर देंगे, ठीक है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में आप जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो आपने 10 यहाँ पे आप इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फॉर्म में हमारे पास लोकल इंस्टीट्यूशन और कॉन्टैक्ट, लाइक जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसका कॉन्टैक्ट, उसका नेम वगैरह, ठीक है, और टाइप ऑफ एक्टिविटी, लाइक टाइप ऑफ एक्टिविटी में आपका उसमें क्या किरदार था, आप सिंपल मेंबर थे, वॉलंटियर थे, ठीक है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की लाइक उस मैनेजमेंट में, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और फॉर्म में आपने यहाँ डेट मेंशन कर देनी होता है, इसको सेव कर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं की, ठीक है, तो सेव कर देता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि आपके एरर है,
लेकिन ये कि आप बाद में फुलफिल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये है अगर आपके पास कोई और डेट प्लेस एंड रीजन है, आपके कोई पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई आपने कोई ऐसा काम किया हो तो यहाँ पुट कर सकते हैं, प्राउड फील करते हैं। लेकिन अदर देन नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, ठीक है, अगर लाइक आप इफ यू हैव बीन अरेस्टेड, अगर तो आप यस, ठीक है, तो आप सिंपली यस करें और साथ यहाँ करें कि आपने क्या एक्टिविटी है, क्योंकि अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे, ठीक है। इफ यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अगर यस तो फिर आप बताएंगे, नो है तो आप सिंपली, ठीक है, नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर्म के अंदर वो है हमारे पास एसओपी, ठीक है। फर्दर एसओपी के लिए मैं ओवर टू हीरा, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि हमने एसओपी को किस तरह लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सेक्शन में उनको बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और इसके सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। ओवर टू हीरा। आतिफ, गुड जॉब, वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट कवर किए एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन फॉर्म के। हमारे पास क्वेश्चन भी आ गए हैं कमेंट्स में, उनको हम थोड़ा कुछ डिस्कशन के बाद हम एड्रेस करते हैं उन्हें। सो गाइस प्लीज स्टे विद अस, आपके क्वेश्चंस हम जरूर एड्रेस करेंगे, आंसर करेंगे। अच्छा, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्पस के एसओपी राइटिंग के लिए क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, एंड किस तरह से आपको एक इफेक्टिव अच्छी एसओपी कैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि एसओपी का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड एंड एन इफेक्टिव एसओपी, ठीक है। तो जी सबसे पहले, अच्छा आसिफ, अगर ओके, टिप्स फॉर राइटिंग एन आउटस्टैंडिंग एसओपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एसओपी लिखने से पहले जो एलुमनाई होते हैं उनसे एसओपीज मांगते हैं, दूसरों की एसओपीज रीड करते हैं और फिर वो अपनी लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगी कि आप अपनी एसओपी सबसे पहले खुद लिखें, ठीक है। जब आप किसी और की एसओपी, किसी और का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ते हैं, किसी और के लिखे हुए पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो हो जाता है, आप लिमिटेड होके सोचते हैं। तो पहले आप खुद अपना विजन ब्रॉड रख के सोचें, एक एसओपी लिखें, टेंटेटिव एसओपी लिखें कि अच्छा, अब उसमें फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आपको कवर करना है अपने इंटरेस्ट्स एंड आपकी पर्सनैलिटी। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, कोई पर्सनल डिटेल्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, समथिंग विच मेक्स यू यूनिक, आपको क्या डिफाइन करती है क्या चीज, या आपकी नजर में आप खुद को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अपनी इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी के बारे में आपको पहले बताना है। उसके अलावा आप इसमें और डिस्कस कर सकते हैं अपने एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने जो फील्ड ऑफ स्टडी अपनी चूज की है वो क्यों चूज की है, एंड फ्यूचर में आप अपने आप को अपनी करियर लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या कहाँ देखते हैं आप, और आपके एकेडमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके क्या प्लान्स हैं उनको अचीव करने के लिए। उसके बाद आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं अपने गोल्स, गोल्स इन टर्म्स ऑफ कि हाउ वुड दोज गोल्स हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन, ठीक है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी एकेडमिक डेवलपमेंट, तो उन गोल्स को आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आपके एकेडमिक गोल्स क्या हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में है, आपके रीजंस, कि आप व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, या व्हाट डिफरेंस कैन यू मेक, अगर आपको चूज किया जाए तो क्या ऐसी यूनिक चीजें हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्या यूनिक सर्विसेज हो सकती हैं, आप किस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं।
उसके अलावा फिर उसमें आप अपने फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिस्कस कर सकते हैं, अपने एम्स डिस्कस कर सकते हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्स रही हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर इंटरेस्ट, योर पर्सनैलिटी। सिंपली आपको अपने आप को डिफाइन करना है। So just be honest about yourself, just be yourself, and आपकी नज़र में, जैसे मैं अगर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखूं तो मेरी नज़र में हिरा निसार कौन है, मैंने ये सोच के अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा। तो आप जब भी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें तो आप ये सोचें कि आपकी नज़र में आप अपने आप को खुद कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे यूनिक हैं अपनी नज़र में, और आप किस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई शुड दे सिलेक्ट यू, व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो अपनी यूनिक चीजें हाईलाइट करना है, अपने यूनिक पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। उसके अलावा जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई है कि किसी और का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं पढ़ना, आपका एक तो पर्सपेक्टिव नैरो डाउन हो जाता है, और फिर देयर आर चांसेस कि आप सबकॉन्शियसली अपना एसओपी लिखते हुए वही पैटर्न रिपीट ना कर दें। ठीक है, तो यूएसईएफपी जब सिलेक्शन करती है तो दे वांट समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। तो अगर आप किसी और की एसओपी से चीजें उठा के डालें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, तो दैट डज नॉट मेक योर एसओपी वेरी इफेक्टिव। तो अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, आप एसओपी लिख के फिर आप रिव्यू करा सकते हैं लोगों से। ठीक है, आप एलुमनाई से हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे रिव्यू करा सकते हैं कि भाई आप मेरी एसओपी देख लें, या कुछ और चीज़ें हैं आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी एसओपी को मजीद बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपके पास वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स की। तो दैट्स ऑल अबाउट एसओपी राइटिंग। अच्छा, उसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने यूएसईएफपी के वेबसाइट पे चेकआउट कर ही लिया होगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कि आप जो है किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो 14th या 15th फॉर्मल एजुकेशन ईयर हो आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से हैं, या आप कोई रिमोट डिस्टेंट एरिया से हैं, या आपका कोई डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होते हैं, या रिमोट एरिया से होते हैं, या जिनको कोई डिसेबिलिटीज होती हैं। तो such people are highly encouraged to apply. So if you guys have any questions, so we can proceed forward. ठीक है, let's come to the section of FAQs, frequently asked questions. So let's start addressing the questions that we have in the comment section. Okay. तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, मोहम्मद शाहजेब ने पूछा है कि आई एम डूइंग मटेरियल्स इंजीनियरिंग बट आई कुडंट फाइंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग इन द लिस्ट. What I did find was in science section, metallurgy. Please tell me what to select. Thanks. Shazib, metallurgy is a domain of materials engineering. So अगर आपको materials engineering का ऑप्शन नहीं मिलता तो I think you can select metallurgy. बाकी उस्मान and Atif, what guidance would you like to give him in this regard? उस्मान बेहतर गाइड कर सकते हैं इस मामले में. As much as I know, तो there is section engineering, तो आप उसको जो है क्लिक कर दें, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू साइंस सेक्शन का, क्योंकि आपको एक अपोजिट हो जाता है. ठीक है, तो इंजीनियरिंग आप जाके उसको चूज करें. यहाँ एक सिंपल सी मैं बात ऐड करना चाहूँगा उस्मान, ये कि आप यहाँ सिंपल इंजीनियरिंग चूज कर लें. यूएस के अंदर ये कोई नहीं होता कि आपने अगर इंजीनियरिंग यहाँ चूज की है तो वहाँ पे जाके आपको इंजीनियरिंग की पढ़नी. इवन कि वहाँ आपके पास
वाइड एरिया है, आप जहाँ आप बिजनेस भी साथ ऐड कर सकते हैं, आप मेडिकल का कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट इनरोल करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये है, आप सिंपली यहाँ पे इंजीनियरिंग चूज कर लें। फॉर फर्दर वो देखा जाएगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट में, कोई इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज फ्रॉम आयशा एंड शी इज आस्किंग, अगर आप 8 सेमेस्टर में हो और टोटल 10 सेमेस्टर्स हो आपके, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? मतलब 10 सेमेस्टर्स 5 साल की डिग्री है और 8 सेमेस्टर में है ये 4th ईयर के एंड पे, और इससे नेक्स्ट ईयर इनका फाइनल ईयर होगा, तो शी इज आस्किंग कि कैन शी अप्लाई और नॉट? बिल्कुल आयशा, आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप अभी लास्ट ईयर में नहीं हो। ठीक है, आपका भी एक लास्ट ईयर पड़ा हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरी है जो है, हम 6 सेमेस्टर में हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो बैचलर्स 4 ईयर्स में हैं वो लोग। तो आप डेफिनेटली यार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देयर विल बी टू जो हैं वो सेशंस जाएंगे अभी, फॉल स्प्रिंग 2022 और फॉल 2022। तो जो स्टूडेंट हैं वो 6 सेमेस्टर में, तो प्रेफरेबली जैसे अभी उनको शिफ्ट कर देगा स्प्रिंग 2022 में, जो कि जनवरी में जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस, अगर कोई आपको कह रहा है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो उसकी बिल्कुल भी ना सुने। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 सेमेस्टर में है अगर तो 5 ईयर प्रोग्राम है, और अगर 4 ईयर प्रोग्राम है तो 6 सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आतिफ, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। नहीं उस्मान, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी ये चीजें। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं और आपने बड़े अच्छे से गाइड कर दिया इनको। बिल्कुल। मैं उस्मान की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, वो उस हिसाब से प्लेसमेंट कर देते हैं फॉल में या स्प्रिंग में। लाइक जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं अपने 3rd ईयर में थी, आई वाज इन सेमेस्टर 6 और 1 साल लगता है प्रोसेसिंग में पूरी एप्लीकेशन की। तो सेमेस्टर 7 का मेरा एंड चल रहा था, सेमेस्टर 8 चल रहा था इनफैक्ट, तो मेरी सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, बट उसके बाद ऑब्वियसली मेरा 4th ईयर क्योंकि एंड हो रहा था, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट ग्रुप में डाल दिया। सो आई वाज प्लेस्ड इन फॉल 2019 इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग 2020, क्योंकि अगर मैं स्प्रिंग में मुझे वो प्लेस करते तो उस वक्त तक मैं अपने फाइनल ईयर में होती। तो व्हेन दे प्लेस्ड मी इन फॉल, तो आई वाज स्टिल इन माय सेमेस्टर 8, आई वाज इन माय 4th ईयर, और मेरा नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर बाकी था। तो वो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर देते हैं, अकोमोडेट कर देते हैं स्प्रिंग एंड फॉल ग्रुप्स में। बिल्कुल। Okay, so Mujib is asking, what if any college doesn't have any fax number? तो I think अगर उसको आप उसकी जगह 1 2 3 4 5 पुट कर दें। ठीक है, हम सिंपली एक ट्रिक यूज करते हैं, अगर आप देख लें इंटरनेट पे अवेलेबल होता है मोस्टली इंस्टीट्यूशन का है, अगर नहीं है तो आप सिंपली 1 2 3 4, क्योंकि वो एज सच किसी काम नहीं आता, तो एक फॉर्मेलिटी है आपने पूरी करनी होती है। बिल्कुल। Okay. Okay, Mujib says in language selection we have to write only foreign language, not local. Laiba Rajput कह रही हैं, I am not getting able to proceed my application. लाइबा, अगर आप काइंडली इश्यूज हाईलाइट कर दें, आपको क्या एग्जैक्टली इशू आ रहा है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं इस हवाले से, बिकॉज आई एम अनेबल टू रिसीव ईमेल। अच्छा लाइबा, आपने अपना स्पैम फोल्डर चेक किए? ईमेल में अपना स्पैम जरूर प्लीज चेक करिएगा, हो सकता है क्योंकि वो ईमेल उधर डायरेक्टेड हो गई हो, तो अपना प्लीज मेक श्योर टू चेक योर स्पैम। अच्छा, स्पैम या जंक मेल में आपको कहीं भी मिल जाएगा, वो डेफिनेटली आपको ईमेल गई होगी, तो आप लाजमी चेक करें, तो आपको ताकि आपको आपका ईमेल जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हसनैन अवान पूछ रहे हैं, शुड आई अटेंड माय कैरेक्टर्स, शुड आई अटैच माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल और कॉलेज? हसनैन, या इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इससे आप अपने जो नॉन एकेडमिक सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, वो अपलोड करें एज कम्पेयर टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इवन कि अब तो USCFE जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी
आप लोगों से नहीं मांग रहा, तो करेक्टर सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल आपकी जो, हाँ बिल्कुल मैं उस्मान की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हैं, आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई सोसाइटीज ज्वाइन की हुई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई रोटरी क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं, कोई कम्युनिटी सर्विसेज हैं आपकी, कोई इंटर्नशिप्स हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हो, सर्टिफिकेट्स हो, तो यू कैन ऑलवेज अटैच दैट। वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी इन्वॉल्व हैं, ऑन कैंपस आप कैंपस लाइफ में इंगेज्ड हैं। तो एकेडमिक्स के अलावा को करिकुलर्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस होता है, स्पेशली यूएस के इंस्टीट्यूट में। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर योर सिलेक्शन। अच्छा, आयशा पूछ रही है दोबारा, कोई एग्जांपल दे दें कि हम क्या लिख सकते हैं कि हमें क्यों सिलेक्ट करें या हम यूएस क्यों जाना चाहते हैं। हीरा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँ। सिंपली हम इसमें ये कि सिलेक्शन ये है, सिलेक्शन इज बेसिकली आपने अपने आप को बेचना है। आप कितना अच्छा बेच सकते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा तो नहीं जानता कि आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो आप खुद पे गौर करें, देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप ही से मिल सकता है, कोई दूसरा बंदा आपसे बेहतर नहीं जानता होता। बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, द सेम गोज फॉर द इंटरव्यू एज वेल। अगर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती है, आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बहुत शाय होते हैं, हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते, हम अपनी प्लस पॉइंट्स खुद नहीं बताते। अब इंटरव्यूअर को या सामने वाले को, जो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर है, वो आपको पर्सनली नहीं जानता, उसको आपके बारे में, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक आप खुद नहीं बताएंगे। तो अब ये सोचना तो आपका काम है कि आपके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो वो फिर आपको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, किस तरह से बताने हैं, वो आपका काम है। एग्जैक्टली। अच्छा, then we have Sabiz and he's asking, is bona fide certificate required to apply for UCRAD? नहीं, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाद में होता है, एनओसी रिक्वायर होता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जब आप लोग ट्रांसक्रिप्ट अपने जो है वो अपलोड कर देंगे, तो वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अटैच करने की। अच्छा, नेक्स्ट जुबैर इज आस्किंग, कैन आई अटैच माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल? नहीं जुबैर, हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड ऑफ दैट। एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। अच्छा, साकिब इज आस्किंग, आई हैव रिटन अबाउट माय ऑल कम्युनिटी वर्क इन एसओपी इंक्लूडिंग ऑल द यूनिवर्सिटी सोसाइटीज, बट आई हैवंट बीन एबल टू गेट एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम सम सोसाइटी टू प्रूव दोस पॉइंट्स ऑफ माय एसओपी। विल इट अफेक्ट माय एप्लीकेशन? देखिए, अगर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपकी कुछ एक्टिविटीज का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं भी है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म मेंशनिंग दैट इन द एसओपी। उस्मान एंड आतिफ, व्हाट डू यू गाइस से? यहाँ पे मैं चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि जिन चीजों का आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो वो आप वो चीजें अपने एसओपी में एलेबोरेट कर दें। ठीक है, और जो चीजें रिमेनिंग है, वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो आप वो पीडीएफ जो होता है वो अपने साथ अटैच करना होता है, तो आप उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो हम लोग इस तरह इसको फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आतिफ ने जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कहा है, क्योंकि हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट में 250 वर्ड्स होते हैं, जिसपे एक और सेशन होगा हमारा कुछ ही डेज में, तो वो भी आप लोगों ने जरूर जो है उस पर ज्वाइन करना है। तो आतिफ ने बहुत अच्छी बात की है कि आप लोग जो चीज़ें आप लोगों की सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ओके, जुबैर पूछ रहे हैं, शुड आई राइट प्रोविंस एंड सिटी नेम फ्रॉम व्हिच आई बिलोंग? Yes, I think वो पूछते हैं application form में, तो obviously you have to write over there like from where you belong. Atif, do you want to say anything on that? नहीं जी, बिल्कुल, वहाँ पे वो लिखा हुआ है आपका करंट सिटी कौन सा है और बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट what Asim Ahmed is asking what to choose gold medal or global U grad. I think global U grad choose कर लेना चाहिए क्योंकि once in a lifetime opportunity है. जब मुझे भी ये opportunity मिली, जब मेरे पास selection letter आया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा dilemma था कि मैं क्या choose करूं, because मेरी जो dates थी जिस दौरान मुझे US में रहना था, उस दौरान मेरे 4th ईयर के एनुअल एग्जाम्स की फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट मिस हो रही थी, और हमें यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 एग्जाम अटेम्प्ट्स मिलती हैं, एंड मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने एनओसी की कंडीशन ही ये रखी कि आपको हम कोई आपकी जो अटेम्प्ट मिस होगी उसके लिए हम आपको कंपनसेट नहीं करेंगे. पहली दफा सेमेस्टर से एनुअल स्विच हुआ था, और एमबीबीएस का 4th ईयर बहुत टफ होता है, बिल्कुल डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था. लेकिन मुझे मेरी एलुमनाई से बात हुई डिफरेंट, उन्होंने कहा कि हेरा इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो अगर कुछ कुछ प्राइस तुम्हें इसकी पे करनी भी पड़ती है अपने होम इंस्टीट्यूशन में, तो गिव इट अ चांस. तो आई गिव इट अ चांस. मैं गई, मैं वापस आई, मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे. मैं वहां भी पढ़ी होती थी अपने एग्जाम्स का. मैं जब वापस आई जस्ट हैड 20 डेज, एंड देन आई came over here and then I took my exams over here in Pakistan and alhamdulillah clear हो गया. तो ये कि some things are worth risking for. तो I would definitely recommend कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, अगर आप गोल्ड मेडल लूज कर रहे हैं या कोई रिस्क आपको लेने पड़ सकते हैं, तो I think it's worth it. It's definitely worth it. बाकी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, आपकी पर्सनल डिसीजंस हैं. बिल्कुल हीरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखें ग्लोबल यूग्रेड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको हर जगह पे गोल्ड मेडलिस्ट मिलेंगे, ठीक है, आपको बेतहाशा गोल्ड मेडलिस्ट मिलेंगे, लेकिन आपको बेतहाशा जो है वो ग्लोबल यूग्रेड के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही मिलेंगे, ठीक है. मैंने अब ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं और ग्लोबल यूग्रेड पे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं. डेफिनेटली आपको जो है वो ग्लोबल यूग्रेड पे ही जाना चाहिए. आसिम है हमारे पास, ठीक है, इसकी एग्जांपल आसिम वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है. हमारे पास हमारा है, हमारा भी गोल्ड मेडलिस्ट थी एट दैट टाइम, और मैं खुद जो हूँ वो ग्लोबल यूग्रेड पे जब जाना था उससे पहले मेरा जो है वो गोल्ड मेडल था, बट फिर आके मेरा 1 साल और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन फिर भी आई जो है अभी भी मैं यूग्रेड को जो है वो कहता हूँ कि यूग्रेड वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड इन माय लाइफ. बिल्कुल. लाइक आई हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने अपना पूरा एक एकेडमिक साल, पूरा एक एमबीबीएस का 1 साल मैंने रिस्क पे डाला, स्टेक पे डाला. आई हैव नो रिग्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह. अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाती तो भी मैं कहती हूँ इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. इट हेल्प मी अ लॉट एज अ पर्सन. आई ग्रू अ लॉट एज अ पर्सन. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, सो टेक द रिस्क. इट्स ऑल वर्थ इट. मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप यूग्रेड और मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ को कंपैरिजन करें तो मेरी पूरी लाइफ एक तरफ और यूग्रेड का जो एक्सपोजर जो उसका एक्सपीरियंस है वो एक तरफ है, ठीक है ना. इस 21 इयर्स एक तरफ और 4 मंथ एक तरफ, तो डेफिनेटली यूग्रेड को आपको चूज करना चाहिए. फर्स्ट एप्लीकेशन तो सबमिट करवाए हैं, सिलेक्शन होगी तो देन आप ये क्वेश्चन तब बनता है आपका, ठीक है ना. आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, देन आप डिसाइड करें कि आपने किस तरफ जाना है. तो यू शुड गो फॉर द यूग्रेड. सही सही बिल्कुल. अच्छा, हसनैन पूछ रहे हैं दोबारा, आई डोंट हैव एनी को करिकुलम सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू? हसनैन ने आई गेस पहले क्वेश्चन पूछा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का. हमने कहा कि को करिकुलर के सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, बट ये कह रहे हैं कि पास कोई को करिकुलर के सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो व्हाट एल्स कैन ही डू? देखिए, अगर आपके पास कोकिलो एक्टिविटीज सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है. आपके पास अगर जो है वो वॉलंटियर एक्टिविटीज हैं तो कोई बात नहीं है. रमज़ान आ रहा है, ठीक है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं यार, इसमें तो कोई बात नहीं है ना कि मेरे पास एक्टिविटीज नहीं है. ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है. आपके पास आप जितने ज़्यादा अटैच करेंगे, आपके पास जितनी एक्टिविटीज होंगी वो प्लस पॉइंट होता है आप लोगों के पास. अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, ठीक है, और कोकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, वॉलंटियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आई थिंक तो
तो इसलिए आप जो है वो अभी कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस वहाँ से लेटर ले सकते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 20 दिन पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा okay. हसना ईमान कहती हैं व्हाट इफ we have not any extracurricular activity certificate and we don't have done any volunteer work. I guess उस्मान already answer कर चुके हैं कि अगर वो तो अच्छा है because आपकी एप्लीकेशन को ये strengthen करता है, आपकी एप्लीकेशन strong होती है इन चीजों से। तो अगर आपने नहीं भी किया है तो I think you still have some time। अगर आप देखें आप लोग कोई volunteer work कर सकते हैं इस दौरान तो definitely go for it। अच्छा, Mia Zain is asking, hello, I study physical education and sports sciences from University Lahore, Pakistan. I want to apply new grad semester exchange program, but unfortunately not able to understand exact study or field relates to my current studies. Kindly show me the right way to overcome the problem as soon as possible and put my application within time frame. Thanks and regards. आतिफ, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि स्टडी फिजिकल यहाँ पे इनका फिजिकल एजुकेशन है तो इनका ना फिजिकल एजुकेशन एक अलग पार्ट है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप वो जाएं तो वहाँ जो एरिया है जहाँ पे वो स्पेसिफिक किए उन्होंने मेजर्स, वहाँ फिजिकल एजुकेशन अगर स्टिल नहीं आ रहा तो सिंपल एजुकेशन में आप अपना आप को ऐड कर दें। ओके थैंक यू आसिम। सवेज ओके, नॉन एकेडमिक वाला पोर्शन में इंस्टीट्यूट एंड कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ जिस इंस्टीट्यूट का नेम ही लिखना है। नेम एंड कॉन्टैक्ट दोनों चीजें हैं, वहाँ पे दोनों की जगह बनी हुई, आपने दोनों चीजें मेंशन करनी है। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, ईमेल एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग वुड वर्क। यस। Acha, Mohammed Shahzeed is asking, are there any specific universities or all of the US universities are included in this program? No, I think there are some specific institutes. उनके criteria पे जो IRIX के board पे कुछ specific institutes होते हैं, जो उनका एक particular criteria होता है, उसके हिसाब से जो fit बैठते हैं तो वो उन institutes को अपने पास list में रखते हैं and you don't get to choose which institute you will be placed in। ठीक है, वो खुद ही placement करते हैं अपने हिसाब से। तो not all universities in US are included and दूसरी बात ये कि you don't get to choose, आपकी चॉइस नहीं होती है, वो उनकी चॉइस होती है, वो आपको जहाँ भी प्लेस करते हैं। बिल्कुल कुछ यूनिवर्सिटीज तो नहीं है, काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और चेंज होती रहती है यूनिवर्सिटी ईयर टू ईयर जो है ये आईरेक्स के साथ जो एग्रीमेंट करता है वो इंक्लूड होता रहता है। और यार अभी तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे। अभी आप लोग देखें कि हम लोगों ने सिलेक्ट होना है, ठीक है, मेन आपका होना बिल्कुल। और आप जहाँ भी प्लेस्ड हो, आप किसी कम्युनिटी कॉलेज में प्लेस्ड हो, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड हो, इट डजंट मैटर, इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, वो उनका काम है, आपको बस जाके अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। Okay. Mia Zain is asking, which subject can I choose from the given subject of UGrad online application according to my degree? मिया जैन, यार हमें कैसे पता होगा कि आपकी कौन सी डिग्री है? आप लिखते हैं कि ये मुझे ये वाली डिग्री है तो हम तो बता सकते हैं ना। Okay. Okay. अच्छा. Hussein is asking, how many students apply in it or how many is selected? अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हजारों की तादाद में इनके पास एप्लीकेशंस जाती हैं, तो अप्लाई तो एज मेनी एज स्टूडेंट्स कैन। बाकी सिलेक्शन का होता है कि आई गेस फॉल और स्प्रिंग दोनों के मिला के कुछ 300 समथिंग कुछ नंबर बनते हैं उस्मान, एज फार एज आई रिमेम्बर। अब कोविड के बाद अगर कुछ थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई है तो थोड़ा सा अपडेट करें आप इस हवाले से। जो कैंडिडेट्स होते हैं टोटली डिपेंड होता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो लोगों ने फंड इशू किए होते हैं, लेकिन मोस्टली 230 to 40 स्टूडेंट जो हैं स्प्रिंग और फॉल दोनों के मिला के हर साल में सिलेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर साल जो है जो स्टूडेंट्स अप्लाई करती हैं उनके भी
जो एप्लीकेशन हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि यूग्रेड जो है वो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ही पता है, ठीक है। तो 17,000 18,000 इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, देन शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यूज के लिए 500, और फिर उनमें से जो है वो अराउंड अबाउट 230 to 40 अकॉर्डिंग टू फंड जितने भी बड़े होते हैं उसके मुताबिक जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रोहन is asking, I have one question, 2-year associate degree in mass communication accept हो जाएगी? अच्छा, ये 2 years का बैचलर्स है क्या? रोहन यार, ये 2 इयर्स जो है एसोसिएट डिग्री, अगर तो आप अपने हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में हैं, और अगर आप हैं अपने सेकंड सेमेस्टर में तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं अगर, तो आप तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक अच्छा, हाँ, जो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और उसमें, जाएगा। हाँ, उसमें एक चीज ये भी थी कि अगर आपका 2 इयर्स का बैचलर है और उसके बाद फिर आप मास्टर्स करते हैं तो अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 इयर्स बैचलर का आपका फर्स्ट ईयर, स्पेशली सेमेस्टर 2 जैसे कि उस्मान ने कहा, या फिर अगर आप 2 ईयर बैचलर्स कर चुके हैं उसके बाद अगर आप मास्टर्स स्टार्ट करते हैं तो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो एजुकेशन ईयर है ना वो कोरिलेट करना चाहिए 14 या 15, 12th इंटरमीडिएट तक हम 12th ईयर काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 13th आपका यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वुड बी 14th एंड 15th। तो सेकंड और थर्ड ईयर से अगर कोरिलेट कर रहा है आपका ईयर ऑफ एजुकेशन तो दैट्स फाइन। Rohan is saying, I have completed semester 2. My GPA is 3.8. I'm in third semester right now, but अभी start करना है। थर्ड सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है, 2 साल की डिग्री है, तो आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू यूएससीएससी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यूएससीएससी ने अपने जो है वो बताया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो आप जाके वहाँ से भी, ठीक है, पूछ सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा पूछे हैं तो यू कैन ईमेल देम टू, ठीक है। तो बिल्कुल, और FAQs में वहाँ मेंशन भी है। फिर अगर इसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं तो फिर मास्टर्स की फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंस आपने 2 साल का बैचलर्स किया हुआ है तो। Yeah, number varies every year. Roughly more than 15 to 20K people apply, and almost 135 plus students go every semester. Acha, Mia Zain is here again. He's asking, can I choose health nutrition with physical education degree? अच्छा देखिए, उसमें आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मुझे मेरे होस्ट इंस्टीट्यूट में 4 कोर्सेज लेने थे और क्रेडिट आवर्स पूरे करने थे। उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि 2 कोर्सेज मुझे अपनी मेजर से रिलेटेड उठाने हैं जो मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, और उसके अलावा जो 2 कोई एक आध कंपल्सरी उनके कोर्सेज होते हैं वो, उसके अलावा अगर आप एडिशनली कोई कोर्स लेना चाहें तो दैट्स अप टू योर चॉइस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आतिफ ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि आसिफ आई थिंक उसी फील्ड के लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स ले सकते हैं, मतलब 1-2 कोर्सेज होते हैं जो मैंडेटरी हैं, उसके अलावा आप अपनी बस आपने वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से, इवन कि आप बिजनेस के हैं तो आप इंजीनियरिंग का उठा सकते हैं, मेडिकल का भी कोई उठा सकते हैं, उसमें कोई वो आपके ऊपर कोई रिकमेंड वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भी। Do we have any more questions? मुजीबुर रहमान पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज सेक्शन वी हैव टू राइट ओनली फॉरेन लैंग्वेज नॉट लोकल, तो वहाँ पे ऑप्शन हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास पहले तो आई थिंक तो नेटिव लैंग्वेज का आता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन कि आप लोगों ने कितने ईयर्स जो है वो इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, कितने सालों से, ठीक है। तो वो लिखने आपने 10, 11, 12, क्योंकि हम लोग इंग्लिश जो है वो नर्सरी प्रेप से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो यू कैन राइट 10, 11, 12 कुछ भी, ठीक है, जो आपको ठीक लगे।
उसके बाद उसमें क्वेश्चन है लोकेशन का, ठीक है, वहाँ पे आप पाकिस्तान लिख सकते हैं। उसके नीचे जो है वो लोकल लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है, उसमें आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेनिश आती है स्पेनिश लिख दें, ठीक है, लैटिन आती है लैटिन लिख दें, जो भी आती है आपको वो आप लिख सकते हैं उसमें। बिल्कुल। आतिफ आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही ऐड करना चाह रहा था, मतलब कि जो बस आपकी लैंग्वेज जो आपको आती है ना, वहाँ पे उन्होंने ओपन दिया हुआ है, कोई वो ये नहीं कि आपने इन लैंग्वेजेस में से सिलेक्ट करना है, ओपनली कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, फिर उसके आगे उन्होंने रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है, वो सारी स्किल्स भी पूछेंगे, वो गुड है, फेयर है, एक्सीलेंट है। और ये आपके सिलेक्शन को कोई मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं करता? लाइक ऑब्वियसली इंग्लिश आपकी थोड़ी सी मतलब, क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं पाकिस्तान में, तो हमें ऑब्वियसली इतनी इंग्लिश तो आती है कि हम थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें, एंड यू नो हमने मेजॉरिटी लोगों ने बुक्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ी होती हैं। तो अदर देन दैट आप लोकल लैंग्वेजेस कुछ भी बोलें, आपकी नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे आपकी एप्लीकेशन पे या सिलेक्शन के प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके बारे में, वी जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू। Hasnan is saying, I work in many volunteer worker organizations, but they are not giving any certificate like Team, Tariam or JDC, etc. अच्छा, तो आप ये तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अगर इस तरह का कोई सर्टिफिकेट बना के दे दें, या फिर आप कोशिश करें आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करें, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ से आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती हो, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो आप उनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या कोई ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो सोसाइटी के लेटर हेड पे आपको रिटन फॉर्म में लिख के दे सकता है कि आपने इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट नेम के हवाले से। अगर तो आप लोगों का फर्स्ट नेम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो FNU, इसका मतलब होता है फर्स्ट नेम अननोन, ठीक है। और अगर आप लोगों का लास्ट नेम नहीं है तो उस पर आप लिख सकते हैं LNU, दैट इज लास्ट नेम अननोन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड और भी अगर आतिफ आपके ज़हन में आ रहे हो तो वो हम एप्लीकेशन सिंपली यूएससीएपी की मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर तो आप कोई चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो सिंपली आप NA लिख दें, ठीक है। कहीं भी अगर आप कोई चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही, खाली नहीं छोड़े, ठीक है। अदरवाइज ये कि जब वो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर आप जब एंड करेंगे, तो अगेन वो आपको पिन करेगा कि ये आपका जो स्पेस वो खाली है, उसको फिलअप करें। सिंपली जो चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो क्वेश्चन कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, सिंपली उसके ऊपर NA लिख दें, नॉट एप्लीकेबल, दैट्स ऑल। अच्छा, किफायत उल्लाह कह रहे हैं, किफायत से following strict timetable is mandatory in this process. In the same way, we shouldn't forget the timetable of our meal, particularly dinner. Okay. तो ये थोड़ा सा कोई भाई आ रहे हैं, बिल्कुल जो है वो बस हमारा सेशन एंड हो रहा है 5 मिनट में, 2-3 मिनट में बोलते, फिर हम जरूर जो है वो डिनर करते हैं साथ में। अच्छा, माहम राशिद का क्वेश्चन है, when will you know that your application is selected? जनरली 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। जनरली जो है 2 महीने ऑलमोस्ट आप लोगों ने भूल जाना है, ठीक है, बिल्कुल भूल जाना है कि यूग्रेड क्या है। सिलेक्ट हो गए तो खुशियां मनानी है, ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुए तो उदास नहीं होना बिल्कुल भी, उसका भूल जाना है, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को उस टाइम एप्लीकेशन कॉल आएंगे जब आप बिल्कुल भूल चुके होंगे कि हमने कभी अप्लाई किया था, ठीक है। इसलिए आराम से जो है वो आप अप्लाई करने के बाद, तो बिल्कुल सेम हैपेंड विद मी। मैं अप्लाई करके भूल गई थी लिटरली कि मैंने अप्लाई भी किया था, और अचानक मुझे अनएक्सपेक्टेडली एक दिन कॉल आ गई इंटरव्यू की, एंड मैं लिटरली भूल चुकी थी इतना टाइम हो चुका था कि मैंने अप्लाई भी किया था। अच्छा,
Mia Zen is asking if we have some subject not pass and have normal CGPA but strong other activities, also elaborate other activities criteria. अच्छा, मिया जैन ये प्रॉब्ली कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एकेडमिकली थोड़ा सा लैग कर रहा हो, कोई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री या रीटेक्स लगे हों, एंड सीजीपीए भी थोड़ी एवरेज सी है लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग हैं, तो मतलब कुड दिस बी अ गुड पॉइंट? आई थिंक अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी अच्छी हैं, एकेडमिक्स पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उस्मान भी आई गेस ये आपको बताएंगे कि जीपीए इतनी ज्यादा यहाँ मैटर नहीं करती, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेड्स, और स्पेशली अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. आई थिंक दैट कैन कंपनसेट फॉर सम ऑफ द लैकिंग्स इन द एकेडमिक रिकॉर्ड्स. और अच्छा, एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. सपोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, एनीथिंग, स्पोर्ट्स, स्पेशली अगर स्पोर्ट्स में आपकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है, या यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट क्लब्स होती हैं, सोसाइटीज होते हैं, तो उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो दैट could also count. या फिर उसके अलावा कोई वॉलंटियर वर्क है या कोई कम्युनिटी सर्विसेज हैं आपकी, तो वो सब अदर एक्टिविटीज में इंक्लूड हो सकती हैं. Usman, would you like to add anything on that? जो पिछले other Universities are activities. closed now. So अच्छा, what Zubair is asking universities are closed now, so what should we do for transcript? या इसका सिंपल ये है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए क्लोज है और अभी रिसेंटली किसने यूएससीएफपी को ईमेल भी की थी, तो यूएससीएफपी ने जो है वो क्लियरली मेंशन किया है कि आप सिंपल पोर्टल जो है आपका, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके स्क्रीनशॉट से या उधर से डाउनलोड करें और वो आप जो है वो सेंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों का जो है वो नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि जितने भी अभी तक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई हैं वो आप जो हैं वो लगा सकते हैं. एक और बात यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज क्लोज हैं मगर एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर आ रहे हैं, क्लर्क्स आ रहे हैं, आप जाके जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं. Okay. Hasnain Awan, in case if we are not selected, can we apply again for it? बिल्कुल, अगर आप नेक्स्ट ईयर अपने फाइनल ईयर में नहीं होते, आप कर सकते हैं दोबारा अप्लाई, बिल्कुल. Achha, Rao Dil Muhammad is asking what kind of questions they ask in the interview and how important it is. Interview बहुत important part है, जितनी important आपकी application है, I think उससे कहीं ज़्यादा important आपका interview होता है कि आपका in person interaction कैसा रहता है, आप क्या impression उनपे छोड़ के जाते हैं. तो basically आपका interview जो है वो आपके SOP से correlate करना चाहिए, and same goes for the interview as well कि आपको अपने आप को present करना है कि आप क्या हैं, how do you define yourself, and they might ask you questions regarding your goals, your objectives, your future plans, and why should they select you, and आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम पे अप्लाई करने के लिए. तो वो सब एस्पेक्ट आप कवर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ के, एकेडमिक, प्रोफेशनल. Usman and Atif, would you guys like to add anything on that? बिल्कुल, जितना हीरा ने बताया, इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी जो भी पर्सनल स्टेटमेंट होती है, आपकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिल आउट करवाते हैं, उसके साथ आप एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि हम जो है यूग्रेड पे जाना चाह रहे हैं लेकिन आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखना नहीं चाह रहे, और आप किसी को पैसे दे के अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखवा लेते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो यूएससीएफपी तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, वो लोग आप लोगों से ऐसे लिखवाते हैं एक, और वो फिर जो है वहाँ पे डेफिनेटली पता चल जाता है आपने पर्सनल स्टेटमेंट आपने खुद लिखी है कि नहीं लिखी. और अभी तो इंटरव्यू तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोचेंगे किस तरह उसको बेस्ट से बेस्ट लिख सकते हैं हम लोग. और आई थिंक कि आतिफ भी लेट हो रहे हैं अब, और हम लास्ट एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं. और
या फिर एग्जैक्टली। जो पे हैं, तो हम बस एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। Acha, what if I haven't, Shahid is asking, what if I haven't participated in any non-academic activities? Do I have to worry about it? अच्छा, मतलब इन्होंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ही थिंक शुड बी वरी अबाउट इट। अगर अप्लाई नहीं भी किया स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एज होता है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, लेकिन स्टिल यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। ठीक है ना, इट्स अप टू योर लक। हाँ, बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हम ले लेते हैं। When will be the next session? इंशाल्लाह आप अपडेटेड रहें हमारे पेज के साथ। इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है, ग्लोबल एक्सचेंजेस का फेसबुक पेज है, तो इंशाल्लाह वी विल बी पोस्टिंग देयर अबाउट द अपकमिंग सेशंस इन फ्यूचर, तो यू कैन स्टे ट्यून्ड ओवर देयर, यू कैन स्टे इन टच। बिल्कुल, ये हमारा लोगो है और ये इस नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। आप किसी के भी थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।